Good morning, ma'am. Good morning, Mahi. Please check the photograph that I just sent into your group. Good morning, ma'am. Morning. जल्दी से वो फोटोग्राफ ड्रॉ कर लो देख के. Okay. This is hardly a 20-25 second work. बहुत छोटा सा है. सामने फिगर रहेगा तो समझ में अच्छे से आएगा. Which class did you have before this? मैम कंप्यूटर एप्लीकेशन दिनेश सर का. Okay, just 1 minute we'll give to people who are still joining क्योंकि फिर समझाने लगेंगे तो आधे से समझ में आएगा लोगों को. Just 1 minute. Okay. Let's start the class. To those who have just joined, I have sent a picture in your group. Okay, that picture will take just 15 or 16 seconds to draw it on your copy. I would advise you to draw it on your copy and then proceed with the class. That way you'll understand it better. It's an appraisal method, which is 360-degree appraisal method. Okay. Before that, we covered the traditional methods yesterday, all the traditional methods, and after we will complete this मॉडर्न मेथड्स ऑल्सो, जिसमें कि दो पढ़ना है तुमको, 2-3 पढ़ना है. डिटेल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. टाइप्स ऑफ मेथड्स अप्रेजल जानना जरूरी है. तो इस केस में आई विल सेंड यू द content. Okay, you filter it out and make it a concise answer, because if I start dictating it in the class, it will take a lot of time. Okay, let's start with the flaws of traditional methods. Please switch on your camera.
I cannot talk to blackboard and teach. आप लोग का क्लास भी ऑफलाइन होने वाला है ना सेकेंड से? So we were talking about, please switch on your cameras, everyone. Yeah, the rest of you, please. Muskan, it's done. Rest of you. Yes, this is what I'm telling you. Muskan has switched on her camera. The rest of you. In this class, we'll start with the flaws of traditional methods. यानी traditional method से modern method shift करने का reason था कुछ. There were reasons, there were conditions that were not being fulfilled when we were talking about the traditional methods of performance appraisal. Like one common drawback that every method of performance appraisal in traditional method has is that it is very, very subjective. Akanksha, I'm not okay. Take care of it. So, in the traditional methods, one common problem that you can see is that it is very, very subjective. And it is very, very dependent upon the subjective judgment of the person who is appraising you. So this way, there's a lot of opportunity or there's a lot of scope of biases getting creeped into the methods or ratings. So we'll start with the flaws or drawbacks of traditional method. Write down criticism of traditional methods. Criticism of traditional methods. First, write down halo effect. Halo, H-A-L-O. Halo effect. H-A-L-O, halo. आप लोग किसी को पता है कि हैलो इफेक्ट क्या होता है? ये एक जनरल टर्म है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर बुक. हैलो क्रिएट कर देना. किसी को आइडिया है? आई एम रिपीटेडली आस्किंग यू टू स्विच ऑन योर कैमरास. एवरीवन प्लीज. हाँ बोलो. मैम किसी को लुक वाइज देख कर परसेप्शन बनाना. किसी को लुक वाइज देख के. ठीक है. लुक एक फैक्टर है आकांक्षा. इसमें लुक को एक फैक्टर तुम मान सकती हो, लेकिन अदर्स. मैम किसी के बारे में जजमेंट देना. जजमेंट देना नो. सुनील, you were there in the class when I was teaching you this add-on course में. आप क्लास में रहते थे, वो भी अकेले. बताइए, याद है कुछ? भूल गए हैं मैम. पॉजिटिव इंप्रूव. यस आशीष. आशीष रिपीट इट. पॉजिटिव इंप्रेशन फॉर एन पर्सन. ओके लेट मी सी. देखो, रामायण महाभारत वगैरह देखे हो तुम लोग? ध्यान दिए हो कि जब भी कभी भगवान का इमेज दिखाना होता है, जब कहीं कहीं से भगवान निकल रहे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? दे जस्ट ड्रॉ अ सर्कल बिहाइंड दैट पर्सन. जिस पर्सन को भगवान के रूप में प्रोजेक्ट करना होता है, उसको एक बहुत तेज लाइट से वो प्रोजेक्ट करते हैं. जैसे कहीं से निकल रहे हैं भगवान, तो एक बहुत तेज लाइट विल फॉलो दैट पर्सन. ये देखिए हो कभी? Yes, ma'am. यस मैम. Can you imagine why is this done? क्या होता है इससे? बताओ. तुम व्यूअर हो ना, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट बस इसी से समझ में आ जाएगा तुमको हैलो इफेक्ट क्या होता है.
कि क्यों किया जाता है ये, और क्यों किया जाता है वो जो करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो, तुम जो कर रहे हो तुम्हारे ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है ये बताओ। पॉजिटिव इंप्रेशन होता है मैम। पॉजिटिव इंप्रेशन, अच्छा, और क्या होता है ये, इसमें कुछ बनाने वाली बात थोड़ी ना है। तुमको क्या लगता है, रामायण देख रहे हो तुम, राम भगवान निकल रहे हैं, विष्णु भगवान निकल रहे हैं, उनके पीछे एक चक्र बना दिया गया, क्या इफेक्ट होता है इससे? मैम मतलब उनका शक्ति होता है वो। ठीक है, ठीक है, चलो, उनकी शक्ति होती है वो। कहने का मतलब कि बाकी चीजें जो स्क्रीन पे है उससे तुम्हारा ध्यान हटके उनकी तरफ जाता है कि नहीं जाता है? यस ये मैम। बताओ। यस मैम। जाता है ना? तो Distract- तुम लोग हर चीज को इतना बनाने क्यों लगते हो आंसर? क्यों सोचते हो कि कुछ किताब से रिलेटेड है तो कुछ तो होगा अच्छा सा, एकदम शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, होता यही है कि तुम्हारा स्क्रीन पे मान लो और भी शिष्य है, पेड़ है, पौधा है, पीछे सीनरी है, कुछ भी रहे, लेकिन तुम्हारा ध्यान उससे हट करके कहाँ चला जाएगा? भगवान पे चला जाएगा, उस आदमी पे चला जाएगा। ये होता है ना? हैलो यस इफेक्ट मैम। का यही मतलब होता है। हैलो इफेक्ट का मतलब है कि तुम्हारी पर्सनालिटी का या तुम्हारे बिहेवियर का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक, कोई एक एस्पेक्ट ऐसा है जो तुम्हारे बाकी हर कैरेक्टरिस्टिक को ओवरपावर कर देता है। Understood? There is one aspect of your personality, or there is one aspect which is related to you, not necessarily of your personality, not necessarily a part of your character, और वो इतना ओवरपावर कर देगा तुम्हारे अप्रेजल को कि जो अप्रेज कर रहा है तुमको वो बाकी चीजों पे ध्यान दे ही नहीं सकता है। जैसे सपोज करो कि एक लड़का है, वो उसका अप्रेजल करना है। अब अप्रेजर ये जानता है कि क्योंकि ये लड़का BMW से नौकरी करने आ रहा है, इसके चाचा जी ये हैं, उसका वो है, एंड एवरीवन नोज अबाउट दैट बॉय, तो मे बी उस अप्रेजर को लगेगा कि ही इज लाइक फिल्दी रिच, बहुत रईस है ये, तो हो सकता है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं से बेनिफिट करे। ओके, तो दिस इज वन एस्पेक्ट। इसमें क्या एस्पेक्ट रहा जो ओवरपावर कर दिया? उसका रिच होना। उसी तरीके से सपोज कि देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी गुड एट इंग्लिश, वेरी वेरी गुड, वेरी फ्लुएंट एंड वेरी स्मार्ट, बट डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। जो उसका KRA है वो परफॉर्म करता नहीं है, लेकिन जो अप्रेजर है वो उसके कम्युनिकेशन से इतना कैरिड अवे है कि ही इज अनएबल टू सी द फ्लॉज इन हिज कैरेक्टर, फ्लॉज इन हिज पर्सनैलिटी। समझ में आया? मतलब तुम्हारा कोई एक एस्पेक्ट तुम्हारे पर्सनालिटी का जो बाकी चीजों को देखने ही नहीं देता है, वो पूरा इफेक्ट मास्क कर देता है। बस वैसे ही जैसे कि भगवान की का निकलता हुआ इमेज रहेगा, तो स्क्रीन पे कुछ भी और हो उससे मतलब नहीं होता है, हम लोगों का ध्यान कहाँ चला जाता है? उस भगवान पे। ठीक है, पहला पॉइंट हैलो इफेक्ट, ये हम भेज देंगे, इसको तुम लोग लिख लेना बाद में, अभी हम समझा देते हैं। सेकेंड इज सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, सेकेंड इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है? देखो, sometimes what happens is, see, the subordinates, they keep on changing, okay, since it is an organization, so the employees, they will keep on changing. Sometimes it so happens that, और performance appraisal एक periodic process है, जिसको भी appraise करना है उसको appraise करना है, उसको उस time में लोगों का appraisal जमा करके और HR department को submit करना है। So sometimes it so happens that your appraiser does not have time to spend too much on performance appraisal, और वो दूसरा एक एस्पेक्ट ये है कि सबऑर्डिनेट को ठीक से जानता भी नहीं कि उसका अप्रेजल कर सके। इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है सबऑर्डिनेट के बारे में अप्रेजर को। वैसे केसेस में
the appraiser will refrain from either praising that employee too much or condemning that employee too much. Okay? अगर हम तुमको नहीं जानते हैं तो हम कैसे सेफ प्ले करेंगे? हम ना तो तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे, क्योंकि फिर हमको जस्टिफाई करना होगा कि किस बेसिस पे मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ की। ना हम तुम्हारी बहुत बुराई लिख देंगे कि नहीं, काम ठीक से नहीं होता है, ये होता है, वो होता है। then I have to answer back in the organization, why did you give so less rating to that person, right? I'll play safe as an appraiser. Central tendency में क्या करेंगे? हम सबको on an average कर देंगे। Understood? सबको हम एवरेज कर देंगे। So this is known as the central tendency error. समझ में आया? एवरेज रेटिंग जो दी जाती है इसको कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी का एरर। Understood? What are the rest of people doing, not making the class interactive? I'm just speaking and you are listening, except for 3-4 students. Ma'am, I am not feeling well, ma'am. And others? Himanshu, Shobit, Priyanshu. Mayank, Yuvraj. Anyway, third one is leniency or strictness. देखो, leniency or strictness. क्या मैम? lenient माने क्या होता है? LENIENT, lenient. Leniency Not strict. or not strict, yes. Leniency or strictness. Leniency और strictness भी एक प्रॉब्लम है कि देखो, जब कोई अप्रेज कर रहा है तुमको, so your appraisal is based upon a lot of subjective judgment. So it depends. क्लास में भी ऐसा होता है, आपको लगेगा कि पेपर कितना भी अच्छा हो, बट क्योंकि आपके टीचर बाय नेचर ही स्ट्रिक्ट हैं, तो उस सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। इवन फॉर अ कैंडिडेट हु इज वेरी गुड, जिसको बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत हाई आता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनके हाथ से मार्क्स ही नहीं निकलता। ठीक है, होता है ऐसा, दैट इज स्ट्रिक्टनेस। और कुछ सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जिसमें तुमको लगेगा अरे कुछ भी लिख देंगे, एवरेज तो आ ही जाएगा, कुछ भी लिख दो। नोबडी इज एडमिटिंग टू दिस फैक्ट, लेकिन दिस इज ट्रू, होता है। कुछ पेपर ऐसा होता है जो हम आसानी से पास कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द टीचर, के मार्क्स मिल ही जाएगा। दिस इज स्ट्रिक्टनेस एंड लीनियंसी। The same thing that there are some appraisers who will rate the entire, अभी क्लास में होते हैं तो हम तुमको ग्राफ बना के बताते हैं कि कैसे स्ट्रिक्टनेस और लीनियंसी वगैरह का ग्राफ बनता है। वो तुमको रेटिंग, जैसे स्ट्रिक्ट है तो वो 5 पे ही रेटिंग आसपास सबका करेंगे, लेकिन लीनियंट है तो लगभग 8, 8.5 on pointer of 10. Okay. Next you write recent behavior bias. Recent behavior bias, ये कल भी बताए थे हम आप लोगों को। Recent behavior bias माने, मान लो कि 1 साल के बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ओके, सॉरी, और हम अप्रेज कर रहे हैं तुमको, साल भर तुमने क्या काम किया वो हम ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन लास्ट के 3 महीने में तुमने जम के काम किया, तुमने सेल्स टारगेट अचीव कर लिया या कुछ वैसा किया जो कि अप्रेजर की नोटिस में आए। So I'll forget how you performed in the last 8 months or 7 months. I'll remember just what your recent behavior was, like your recent performance was. This is recent behavior bias. Okay. Next, miscellaneous bias. Miscellaneous bias. इसमें जितना जो बायसिंग आप सोच सकते हैं वो उस टाइप के बायस इसमें डाले जाते हैं। जैसे तुम्हारा एचआर का डिपार्टमेंट है, किसी का प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, किसी का क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, किसी का क्वालिटी एश्योरेंस है, किसी का वेयर हाउस है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको लगता है कि मैं क्यों खराब रेटिंग दे दूं अपने एम्प्लॉयज को, मैं अगर खराब रेटिंग दूंगा तो इनकी सैलरी ऑन एन एवरेज बाकी डिपार्टमेंट की सैलरी से कम होगी,
ठीक है, तो मैं क्यों अननेसेसरली खराब रेटिंग दूं अपने एम्प्लॉयज को, तो वो रेटिंग बढ़ा के दे देते हैं, इसलिए ताकि इनकी सैलरी उनके सैलरी से कम ना हो। क्योंकि इन जनरल देखा गया है कि देखो थोड़ा बाइसिंग तो होता है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रहेंगे तो जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं ना, उनकी सैलरी थोड़ी सी सिमिलर टाइम पे भी अगर ज्वाइन किया गया है तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, सो द डिपार्टमेंट पीपल आर ऑल्सो, द डिपार्टमेंट हेड्स आर ऑल्सो गिविंग मोर रेटिंग टू देम इन दैट वे। ठीक है, चलो we'll move to the next method, which is very important method, not just for your PBM but for your career as a whole. If you want to pursue your career in management, then write down 360-degree appraisal and feedback. 360 डिग्री, डिग्री हिंदी सॉरी वर्ड्स में मत लिखना, जैसे डिग्री लिखा जाता है वैसे ही। 360 डिग्री अप्रेजल एंड फीडबैक। थ्री 360 डिग्री कितना होता है? एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, वहीं आके एंड होगा। फुल सर्कल? मैम फुल सर्कल। Yes, 360 degree is full circle. Now, how many quadrants are there in 360 degree? 4 quadrants, ma'am. 4 quadrants. Now, these 4 quadrants have been given to 4 different categories of people to rate an employee. ये जो 360 डिग्री अप्रेजल होता है, इसमें एम्प्लॉय को बीच में रखा जाता है और उस एम्प्लॉय को चारों तरीके से, चारों तरफ से जज किया जाता है। आप जैसे जैसे मॉडर्न मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे, आपको ये फील होगा कि अब इंडस्ट्री में सिर्फ आपका काम कंप्लीट कर देना ही इनफ नहीं है। यू विल ग्रेजुअली फील दिस। हर अप्रेजल मेथड जो मॉडर्न की तरफ बढ़ रहा है, उससे आप ये फील करेंगे कि मॉडर्न अप्रेजल मेथड्स, दे ले फोकस, दे स्ट्रेस एंड दे फोर्स यू टू इम्प्रूव योर बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक क्या होता आया? अभी तक ये होता आया है कि अभी तक ये होता आया है कि आप सिर्फ अपने बॉस को खुश रखते थे क्योंकि वही आपका अप्रेजल करेगा। यू जस्ट कीप योर बॉस हैप्पी, बॉस ने जो जो काम दिया वो काम पे कर लो, बॉस को दिखा के हम टाइम पे हैं, टाइम से आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, यू नो, इट्स लाइक जस्ट कीपिंग योर बॉस हैप्पी। बट उसको कोई मतलब नहीं था कि क्लाइंट कैसा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके जूनियर्स उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है। All his focus was on just making his boss happy. लेकिन 360 डिग्री अप्रेजल मेथड जो कि वाइडली यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, रिलायंस में यही मेथड यूज होता है, इन्फोसिस में यही होता है, विप्रो में यही होता है, क्रॉम्पटन में यही होता है, तो जितनी जितनी बड़ी बिजनेस हाउसेस हैं वो इसी मेथड को यूज कर रही है। आप समझ सकते हैं कि इस मेथड को यूज करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप है, क्योंकि primarily this is a method which is kind of a feedback control method, लेकिन अप्रेजल की तरह इसको यूज किया जाता है। किसी ने फिगर ड्रॉ किया है? ठीक है, बीच में देखो एम्प्लॉय है और उसके चारों तरफ 4 क्वाड्रेंट्स में लोग हैं। कौन कौन है? सेल्फ अप्रेजल, सेकंड सुपीरियर, थर्ड peers, fourth subordinates। ठीक है, देख लेना जिसने नहीं ड्रॉ किया है, कोई बात नहीं, अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैंने भेजा था क्लास स्टार्ट होने के, इसलिए इट्स ओके। सेल्फ अप्रेजल, नॉर्मली आपको ये अपॉर्चुनिटी अदर मेथड्स में दिखी कहीं कहीं ट्रेडिशनल मेथड में कि तुम अपने बारे में बता सकते हो? नो मैम, नहीं दिखी। But this is a wonderful method that has included an opportunity, a scope for your self appraisal। मतलब तुम अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर है, क्यों कहने का मतलब, देखो तुम्हारे बारे में अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या कोई तुमको कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर इतनी मेंटल मैच्योरिटी होनी चाहिए इस चीज को समझने के लिए कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना जरूरी होता है। समटाइम्स इट विल डू गुड फॉर योर इम्प्रूवमेंट।
Okay, so Muskan, I'll send you the entire content, don't write. Okay, you just listen, I'll send you the content and then you filter out. समझ लोगे तो फिल्टर भी कर लोगे. सेल्फ अप्रेजल का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को टोटल फ्रीडम है कि वो अपने बारे में अपने फॉर्म में या जो भी अप्रेजल फॉर्म है उसमें लिख के ऑर्गेनाइजेशन को बता सके कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है. ठीक है, ये देखा गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर होती है, इनसिक्योर नहीं होती है, तो लोग अपने बहुत शानदार क्रिटिक होते हैं. ठीक है, कि कहने का मतलब कि अगर हम तुमको बोलें कि सुनील एक फॉर्म है, तुम इस फॉर्म को भरो, उसमें लिखा है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, तुम्हारे बहुत सारे इंटरव्यू फॉर्म में जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है उसमें ये भराया जाता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस. ओके, तो वीकनेसेस क्या है, तो कई बार लोगों से ये देखा गया है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक क्रिटिकल एनालिसिस के पोजीशन में रखते हैं और जेन्युइनली लिखते हैं कि उनमें क्या वीकनेसेस है. ओके, नाउ the organization should be very receptive for this kind of appraisal. And कई बार सेल्फ एनालिसिस में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ये भी लिखते हैं कि वो करियर ओरिएंटेशन फर्दर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा चाहते हैं. करियर प्लानिंग समझ में आया जो पढ़ा था तुमने, कि वो कैसी अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. अब देखो, हो सकता है कि तुम कुछ वैसा सोच रही हो, तुम्हारे मन में कुछ वैसा हो जो ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप के ही बाहर हो, लेकिन स्टिल फर्स्ट हैंड ऑर्गेनाइजेशन को ये इंटरेस्ट होता है जानने में कि लोग क्या चाहते हैं कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिले. ठीक है, so self appraisal is one very important point of 360 degree appraisal. Second पे आओ, superior appraisal. सेकेंड पॉइंट लिखो, सुपीरियर अप्रेजल. ये सबसे सिंपल है, ये हर जगह होता है. अभी जितना मेथड तुमने देखा कि सब में था. सुपीरियर अप्रेजल मतलब तुम्हारा जो सुपीरियर है, तुम्हारा जो बॉस है, वो तुम्हारा अप्रेजल करेगा. लेकिन हाँ, 360 डिग्री अप्रेजल को एक फीडबैक मेथड भी बोला गया है. ये एक बहुत एक्सटेंसिवली डिजाइंड मेथड ऑफ फीडबैक है. कहने का मतलब कि इस अप्रेजल मेथड में सुपीरियर जो प्रॉब्लम्स आप में देखते हैं, जो आपको अप्रेज कर रहा है, उसको बहुत कंस्ट्रक्टिवली देखता है. यानी दैट पर्सन उनको ये इंफॉर्मेशन रहती है, उनको ये ऑर्डर होता है ऊपर से कि आप अगर किसी एम्प्लॉय में कोई फ्लॉ देख रहे हैं अप्रेजल मेथड से, तो उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए. rather make an effort towards constructively helping the employee get rid of that flaw or problem. Understood? In a good spirit, like you call that employee, you counsel that employee, you ask the employee what is the problem with you, is there anything the organization can assist you with, or is it your personal problem that is making an inhibition in working or performing better in the organization? Do you need some kind of training? Or if you feel that deliberately that person needs some kind of training, put him to training. Okay? जब ट्रेनिंग पढ़ा रहे थे तो ट्रेनिंग डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताए थे ना, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन. यस मैम. और उसमें ऑर्गेनाइजेशनल नीड और इंडिविजुअल नीड दोनों आता है. ये इंडिविजुअल नीड है. ठीक है, ये है सुपीरियर अप्रेजल. थर्ड पॉइंट पे आओ, पीयर ग्रुप अप्रेजल. पीयर ग्रुप, PEER, पीयर ग्रुप अप्रेजल. पीयर मानी क्या होता है? कोलीग्स. गुड, ठीक है. पहले किसी अप्रेजल मेथड में ये चीज देखा है कि तुम्हारे साथ वाले तुमको अप्रेज करेंगे? नहीं. नो मैम. हम बार बार बता रहे हैं कि 360 डिग्री अप्रेजल मेथड एक फीडबैक मेथड भी है. ये एक्चुअली फीडबैक के लिए ही डिवाइस हुआ मेथड. जब पीयर से पूछा जाता है, जैसे 2-3 लोग होते हैं जो पीपल हु आर वर्किंग विथ यू एंड पीपल हु आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ
योर डिपार्टमेंट, मतलब वैसे पेयर्स को चूज किया जाता है जो या तो आपके बगल में बैठते हैं, आपके साथ ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं. ओके, that is known as 360 degree, that is known as peer appraisal. Now peer appraisal क्या फीडबैक लेना चाहेगा, बताओ. ऑर्गेनाइजेशन peer appraisal से क्या फीडबैक लेना चाहती होगी? कि उसका पीयर कैसा है, क्योंकि वो टीम वर्क को अफेक्ट करेगा. एग्जैक्टली, से टीम वर्क, ये टीम वर्क को अफेक्ट करेगा. वेरी गुड. टीम वर्क, उसका कोऑर्डिनेशन, उसका वर्किंग स्टाइल, उसका बिहेवियर एट वर्क प्लेस, उसका कोऑपरेशन, ऐसी चीजें अफेक्ट करेंगी ना, क्योंकि अभी के टाइम पे टीम वर्क पे बहुत फोकस है. आप ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा प्रोजेक्ट मिलता है जो कि सिंगल आदमी हैंडल नहीं कर सकता है. सो इफ यू आर बैड एट टीम वर्क, यू आर प्रोबब्ली नॉट द राइट पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और काफी सारे लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है जो अकेले अच्छा काम करते हैं पर टीम वर्क में वो कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं. तो ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए पेयर अप्रेजल किया जाता है. नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट्स अप्रेजल. सबऑर्डिनेट्स अप्रेजल ये सबसे ज्यादा अलग और एक डिस्टिंक्ट फीचर है इस अप्रेजल का. अभी तक कहीं सुना था कि तुम्हारे से जूनियर तुम्हारा अप्रेजल करेंगे? नहीं सुना था ना. तो ये अप्रेजल मेथड क्या निकालना चाहेगा फीडबैक, बताओ, सोच के बताओ. जिसको हम बोलेंगे वो बताओ. ओके, आरती कुमारी. यस मैम. टेल मी, तुम्हारे सबऑर्डिनेट से तुम्हारा अप्रेजल हो रहा है. व्हाट विल द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा जूनियर तुमको अप्रेज कर रहा है, बीबीएम फर्स्ट ईयर का बच्चा तुमको अप्रेज कर रहा है. ये समझ, मान लो कि तुम्हारा उससे इंटरेक्शन है, तुम उससे बात करते हो और वो तुम लास्ट में हम पूछेंगे तुम्हारा नेचर कैसा है या तुम कैसे हो, तो उसको भी एक स्कोप है कि तुम्हारे बारे में बता सके, उससे हम जज करेंगे. क्या पूछना चाहेंगे हम उससे? नॉलेज कितना है, मतलब कि उनको जो नॉलेज चाहिए वो दे पा रहे या नहीं, उनके हिसाब से वो सेटिस्फाई है या नहीं हमसे, जो भी इंफॉर्मेशन दे. ठीक है, चलो, टू एन एक्सटेंट यू आर राइट, बस जस्ट दैट यू डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स. गुड. नेक्स्ट, हिमांशु. आशीष. मयंक. स्वर्णिका. प्रवीण पराशर. आप लोग का अटेंडेंस 0 कर देते हैं हम इस क्लास में. फिर लॉग्ड इन, नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट पुटिंग द वीडियो ऑन. नेटवर्क इशू के कारण वीडियो ऑफ है मैम. ठीक है, तो बताओ, आंसर करो. कोई बात नहीं है, वीडियो ऑफ हो सकता है. आंसर करो. क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा. If your junior is allowed to appraise you, what do you think the possible feedbacks that I would want from the junior about you? मैम वर्क एक्सपीरियंस के बारे में. Please be specific. थोड़ा सा जनरल आंसर मत करो. क्या जानना चाहेंगे हम तुम्हारे जूनियर से तुम्हारे बारे में? मैम नेचर ऑफ द पर्सन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब. No, not specific. Anyone else wants to answer this question? कोई आंसर करना चाहता है? यस मैम. मैम उसका बिहेवियर, उसका Okay. वर्क
work experience and quality. Okay. And any other answer addition to this? मैम ये भी तो बोल सकते हैं ना, मैम ये भी तो बोल सकते हैं ना And ma'am, punctuality also. एज अ टीम वर्किंग क्या है, मतलब जिन लोगों से हमारा अप्रेजल से रिलेटेड क्वेरी ले रहे हैं हमारे सीनियर्स, तो जूनियर्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, टीम के साथ रिलेशन कैसा है. दिव्या. यस मैम. वेरी गुड. दिस इज एक्चुअली द पॉइंट. गुड. ये पॉइंट है. मुस्कान, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? मैम यही कि सुपीरियर के साथ तो सभी बटरिंग करते हैं, बट जो उसका रियल बिहेवियर है वो तो जूनियर के थ्रू ही पता चलेगा. नहीं, देखो दिव्या ने जो बोला पॉइंट वो एक्चुअल पॉइंट है. तुम्हारे जूनियर्स को वर्क प्लेस पे क्या चाहिए होता है? वर्क प्लेस पे तुम अपने जूनियर्स को बताते हो कि काम कैसे करना है, और तुम्हारे जूनियर्स को क्वेरी रहती है किसी चीज के बारे में कि काम कैसे करना है, क्योंकि तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग दैट पर्सन, राइट? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग वर्क टू दैट पर्सन, गाइडिंग दैट पर्सन, मोटिवेटिंग दैट पर्सन. और इन सब के दौरान कई बार ऐसा हो सकता है कि जूनियर को काम समझ में ना आए, तो दैट पर्सन मे कम एंड सीक योर एडवाइस एंड योर हेल्प, योर सजेशंस, योर रिकमेंडेशंस अबाउट वर्क. तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो तुमको दिमाग में ये है कि जूनियर से रिलेशन बना के क्या करना है, हटाओ इसको, जहाँ जाओ अभी बिजी है, तुमको बस ये फील हो रहा है कि तुमको अपने से ऊपर वाले को खुश रखना है. डिड यू परफॉर्म द प्रॉपर टीम वर्क? नो मैम. नो. एंड यू डिड नॉट सुपरवाइज दैट. जो आपका काम है करना, आप जूनियर को इग्नोर करेंगे, आपका बिहेवियर जूनियर के प्रति खराब हो सकता है, राइट? ये होता है. हाँ. और दूसरी बात भी होती है, जैसे मान लो कि जूनियर्स को हम मान लो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जूनियर्स को हम काम सिखा रहे हैं, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि तुम ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ सीनियर हो, कि तुम डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते हो, तुम किस तरीके से कितने हद तक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो अपने जूनियर्स को. यानी तुम्हारे अंडर 10 जूनियर हैं और तुम उनको सम डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहे हो काम करने के लिए कि नहीं दे रहे हो. तो जब अप्रेजल होगा तो जूनियर्स तो फीडबैक देंगे ना तुम्हारे बारे में. अब ये जूनियर्स का मतलब एकदम जूनियर नहीं होता है. अब कोई एजीएम रैंक का है तो उसको सीनियर मैनेजर अप्रेज करेगा, कोई सीनियर मैनेजर रैंक का है तो उसको मैनेजर अप्रेज करेगा, राइट? तो उनका बिहेवियर जज होता है. चलो, इस मेथड का ड्रॉबैक लिखो. लिमिटेशंस ऑफ 360 डिग्री मेथड. बताओ क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है. सोच के बताओ. अभी इतना चीज पढ़े हम लोग, इसके बारे में ड्रॉबैक सोच करके बताओ. मेरिट्स तो हम तुमको भेज देंगे, तुम देख के लिख लेना, बट डीमेरिट्स आई वांट टू नो कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इस मेथड का क्या ड्रॉबैक हो सकता है. मैम जैसे अगर पीयर टू पीयर डिसलाइकिंग है तो अप्रेजल में 1 पॉइंट. वेरी गुड, वेरी सॉलिड पॉइंट. पीयर टू पीयर होगा ही, राइवलरी होती है, कंपटीशन होता है, कोई तुम्हारे साथ वाला हो सकता है ड्यू टू सम पर्सनल डिसलाइकिंग माइट नॉट रेट यू प्रॉपर्ली, जिसको सेलेक्ट किया गया है रेटिंग के लिए. वेरी गुड. उसके अलावा डिसऑनेस्ट रिव्यू भी हो सकता है. डिसऑनेस्ट रिव्यू ठीक है, पर ये तो हर जगह, हर अप्रेजल में कॉमन तुम बोल सकते हो कि टू एन एक्सटेंट. बट डिसऑनेस्ट रिव्यू का स्कोप नहीं होता है सुनील, क्योंकि जो अप्रेज करता है उसके ऊपर भी काफी चेक और सुपरविजन होता है, और 360 डिग्री वगैरह इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन को. और जो अप्रेज कर रहा होता है, जो इवेल्युएट कर रहा होता है फीडबैक, वो भी लर्नर्ड आदमी होता है. इसके अलावा बताइए, एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है इसमें जो तुम लोग बिना दिमाग लगाए सोच सकते हो. टाइम कंज्यूमिंग, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहता है. तो दैट इज गुड, दैट इज द रीजन तुम्हारा बिहेवियर मॉनिटर्ड रहे, इसीलिए ये 360 डिग्री अप्रेजल लाया जाता है ना. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है. टाइम कंज्यूमिंग नो आकांक्षा,
बिकॉज ये बड़े डिस्क्रिमिनेशन मैम। डिस्क्रिमिनेशन, तुमको नहीं लगता है सबऑर्डिनेट से रेट होना किसी के लिए भी ह्यूमिलिएटिंग हो सकता है? यस मैम। तुम्हारा जूनियर तुमको रेट करेगा, इससे बुरा क्या लगेगा कि जिसको तुम डांट रहे हो उसके हाथ में तुम्हारा अप्रेजल है, तुमको सैलरी कितनी मिलेगी वो उस जूनियर पे भी डिपेंड करता है। दिस कैन बी ह्यूमिलिएटिंग एट टाइम्स। हालांकि ये जो अप्रेजल मेथड है इसमें जूनियर्स को ये स्कोप दिया गया कि जैसे जब आप अपने सीनियर के बारे में वो लोग लिखते हैं तो वो ये भी लिखते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं उनके सीनियर्स के बारे में जो वो चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करते रहे, या ऐसी क्या बातें हैं जिसको कि जूनियर्स को लगता है कि इसको स्टॉप कर देना चाहिए हमारे सीनियर्स को, ये अच्छा नहीं है, या ऐसी क्या बात है जो कि जूनियर्स को ये लगता है कि सीनियर को शुरू करना चाहिए। There's anything that you feel that it should be started. जैसे आपको भी लगता होगा कभी कभी कुछ कि कॉलेज में ऐसा होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, तो ये आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे हैं, आप ज्यादा समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या कुछ शुरू होने से क्या बेहतर हो सकता है। Similarly, the juniors in this also have a scope of telling their seniors what do they like about the seniors to continue doing, what do they do not like about the seniors to that should be stopped immediately, and what they want to make a request to the seniors to start afresh. Okay, लेकिन फिर भी ये ड्रॉबैक में एक आता है कि ह्यूमिलिएटिंग होता है। दूसरी बात कि हो सकता है कि आपका पीयर्स जो आपके साथ वाला हो वो फुली कॉम्पिटेंट ना हो आपको रेट करने के लिए। ऐसा हो सकता है ना कि वो अगर फुली कॉम्पिटेंट नहीं है तो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, अब तुम्हारा आर्ट्स में टेस्ट बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो, तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो तो ये मुझे समझने के लिए मेरी भी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए ना, otherwise how would I judge you, right? So similarly there are times when the peers are not that competent. Next thing, इसमें गोल से कोई बात ही नहीं की गई। आपने देखा इस मेथड में कहीं गोल सेटिंग हुआ है? नहीं हुआ है। ऑल द टाइम फोकस इज ऑन बिहेवियर। ठीक है, तो गोल सेटिंग की कोई बात नहीं की गई है एंड कंप्लीटली दिस इज बेस्ड ऑन बिहेवियर। लेकिन होता ऐसा एक्चुअली ये है कि भाई गोल सेटिंग तो वो करवा ही लेते हैं मैनेजर्स, और उसको गोल को अचीव वो करवा ही लेते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस में दे नॉट लीव यू विदाउट कंप्लीटिंग योर वर्क, there's too much of work pressure anyways. Okay, we'll end the class here, and in the next class there are 2 more methods and potential appraisal. Probably that will be the if we can complete it then it's fine, otherwise we'll take 1 more class. Okay, yes ma'am.